السلام علیکم دوستو، ملکی حالات کا تو آپ کو اندازہ ہے ہی۔ اگر آپ پاکستان کے شہری ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اس وقت ملکی حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ وہ اس لیے خراب ہیں کہ ہر جگہ دھرنے اور تقریباً بڑے بڑے شہر بند ہیں۔ اس کی مین ایک وجہ تو ہے کہ پی ڈی ایم اپنے دھرنے دے رہی ہے، اور اس کی مین جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان، جو کہ 2017 میں وجود میں آئی، جس کے بانی علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمہ اللہ وہ وفات پا چکے ہیں، اور ان کے بعد ان کے صاحبزادے علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب، ان کے ہاتھ میں اس تحریک کی باغ دوڑ آ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے اس تحریک کو لے کے آگے چلنا تھا۔ ابھی حافظ خادم حسین رضوی صاحب وفات سے پہلے ان کا حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا، جس کے اندر وفاقی وزیر اور 3-4 اور وزیروں کے دستخط تھے، جس میں واضح طور پر لکھا گیا تھا کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے گا۔ لیکن پھر اس کے بعد ایف اے ٹی ایف کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے حکومت نہیں نکال سکی، حکومت فرانس کے سفیر کو نہیں نکال سکی۔ پھر حکومت نے ان کے ساتھ تقریباً فروری میں، میرے خیال سے ان کے ساتھ معاہدہ کیا، فروری یا مارچ، اس کے درمیان میں ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ معاہدے میں یہ تھا کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا جائے، ٹائم دینے کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس کو سیٹ کر لیں گے۔ لیکن پھر اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے گرفتاریاں شروع کر دیں، 2 سے 3 بار انہوں نے معاہدے کیے، اس کے بعد انہوں نے گرفتاریاں شروع کر دیں، اور تحریک لبیک پاکستان ٹی ایل پی کے جو رہنما ہیں علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب، ان کو حکومت نے اٹھا لیا۔ حکومت نے ان کو اٹھایا، اس کے ساتھ ہی پورا ایشو کھڑا ہو گیا، پورے ملک میں پہیہ جام ہڑتال ہو گئی، اور پورا ملک جو ہے نظام مفلوج ہو گیا، پورا ملک کا نظام خراب ہو گیا۔ اس وقت تو انہوں نے ان کے ساتھ پھر سے ایک معاہدہ کیا، ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جسے کہتے ہیں کہ لالی پاپ انہیں دے دیا، تحریک لبیک پاکستان کو لالی پاپ دیا کہ جی آپ جائیں دھرنا اٹھا لیں، ہم ان کو چھوڑ دیں گے، اور آپ کے جو مطالبات ہیں فرانس کے سفیر کے وہ بھی ہم مانیں گے، جیسا کہ شیخ رشید صاحب اپنے بیان میں بتا چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے وہ جو معاملہ تھا وہ پارلیمنٹ میں پیش کرنا تھا، بل پیش کرنا تھا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اسے ڈائریکٹ نکال دیں، ٹی ایل پی کا ہرگز یہ مطالبہ نہیں تھا کہ فرانس کے سفیر کو نکال دیا جائے۔ ان کا یہ مطالبہ تھا کہ فرانس کا جو سفیر ہے اس کو پارلیمنٹ کے ذریعے قرارداد پیش کی جائے، اور تمام لوگ اگر اس سے متفق ہیں پارلیمنٹ کے تو پھر اسے نکالا جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، شک ہم بھیجتے ہیں۔ انہوں نے تمام معاملات ان کے سیٹل ہو گئے، انہوں نے ایک شک بنا کے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بھیجی۔ لیکن وہ بھیجی کیسے؟ ان کے اندر بھی حکومت کی بدنیتی تھی۔ اس میں یہ تھا کہ انہوں نے جو شک تھی وہ ایک پرائیویٹ ممبر کے تھرو، یعنی کہ ان کی حکومت پی ٹی آئی کا وہ بندہ نہیں تھا، وہ پرائیویٹ ممبر جو ان کے اندر ان کے ساتھ اٹیچ ہوا تھا، انہوں نے اس کے تھرو بھیج دیا۔ جب وہ بھیجا تو اس کے اوپر بحث ہی نہیں ہوئی، ڈیبیٹ ہی نہیں ہوئی، کوئی کمیٹی ہی نہیں تشکیل دی گئی، جس کی وجہ سے یہ معاملہ بہت لیٹ سے لیٹ تر ہوتا گیا۔ یہ معاملہ لیٹ ہوا، تحریک لبیک پاکستان نے ویٹ کیا، ان کے جو سربراہ ہیں ان کو بھی اٹھا لیا گیا تھا، ان کے سربراہ کو اٹھا لیا گیا تھا۔ انہوں نے ویٹ کیا کہ اب کرتے ہیں، کیونکہ علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کا 1-2 بار ان کی بات چیت ہوئی آپس میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے نہیں چھوڑیں، لیکن یہ جو فرانس کا سفیر ہے اس کو پارلیمنٹ کے ذریعے نکالیں، مجھے اپنے پاکستان کی عدلیہ پہ یقین ہے، میں عدالتوں پہ یقین رکھنے والا بندہ ہوں، میں انشاءاللہ عدالتوں سے ریلیف لے لوں گا۔ وہ بات کا مسئلہ ہے، انہوں نے کیسے ریلیف نہیں دیا وہ میں ایک اگلی ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ جناب میں عدالتوں سے ریلیف لے لوں گا، لیکن عدالت نے جب کارروائی ہوئی تو اس حکومت کی بدنیتی عدالت کے سامنے آ گئی، اور عدالت نے انہیں باعزت بری کر دیا۔ لیکن حکومت نے نہیں چھوڑا، پھر نئے سے نئے کیسز بنتے گئے۔ اس کے بعد ٹی ایل پی والوں نے سوچا کہ ایک پرامن احتجاج کیا جائے۔ انہوں نے پرامن احتجاج کیا، اور یہ کھڑے ہو گئے یتیم خانہ چوک جو ہے نا وہاں پہ سائڈوں پہ کھڑے ہو گئے، ٹریفک رواں دواں رہی، اور حکومت کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی۔ جب یہ کھڑے رہے تقریباً کوئی 10 دن یہ کھڑے رہے ہیں۔ حکومت نے ان کے ساتھ
जो अंदर की बात है ना, वो हुकूमत ने इनके साथ मुज़ाकरात किए 10 रबीउल अव्वल को। हुकूमत को ख़तरा था कि 12 रबीउल अव्वल को ये जुलूस वाला धरना दे सकते हैं। 10 रबीउल अव्वल को इनकी मीटिंग हुई। मीटिंग में ये तय हुआ कि आप हमें 10 से 15 दिन दें, जिससे हम अपने जो तमाम कानूनी तकाज़े हैं वो पूरे करें। लेकिन मजलिस शूरा ने इनके ऊपर भरोसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि 2 से 3 बार ये पहले भी बदअहदी कर चुके थे। क्योंकि कुरान शरीफ में है कि वऊफू बिल अहदी इन्नल अहदा काना मसऊला, कि अहद पूरा करो, बेशक अहद के बारे में पूछा जाएगा। इन्होंने बदअहदी की और मामला ख़राब हो गए। टीएलपी वालों ने, उनकी जो मजलिस शूरा के नीचे मुशीर हैं, उन्होंने कहा कि अब नहीं ना तो फिर कभी नहीं, हुकूमत निकलने नहीं देगी। 12 रबीउल अव्वल का हमारा जो जुलूस होगा उसको हम बिठा देंगे धरने में। इन्होंने धरने में बिठा दिया जुलूस को। जैसे ही 12 रबीउल अव्वल की शाम हुई, इनका जुलूस ख़त्म हुआ, इन्होंने धरने का ऐलान कर दिया। जितना भी इनका जुलूस था वो बहुत बड़ा था। जुलूस को इन्होंने धरने पे बिठा दिया और हुकूमत को एक अल्टीमेट दिया कि हुकूमत हमारे साथ मुतालबात हैं वो पूरे करे, हमारे साथ मुज़ाकरात करे। लेकिन हुकूमत ने उस वक़्त इनकी नहीं सुनी। इन्होंने कहा कि हम नहीं तो हम मार्च करेंगे इस्लामाबाद डी चौक की तरफ, जहाँ पे बाबा अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब धरना पहले 2017 में और देते रहे हैं। ठीक है, उनके धरने काफ़ी सारे वहाँ पे हुए हैं और इन्होंने कहा कि हमने वहाँ की तरफ मार्च करनी है। जब इन्होंने मार्च करनी शुरू की तो हुकूमत ने इन्हें पहले तो कुछ नहीं कहा, तकरीबन 2 घंटे ये चलते रहे हैं। उसके बाद इनके ऊपर बदतरीन शेलिंग शुरू हो गई। इनकी तरफ से भी बंदे शहीद हुए और जो पुलिस वाले थे वो भी शहीद हुए। ज़ाहिर है दोनों कलमा गो हैं तो हम तो दोनों को ही शहीद कहेंगे। उनकी तरफ से भी शहीद हुए, उनकी तरफ से भी शहीद हुए। फिर पुलिस ने कहा कि जनाब इन्होंने गाड़ी चढ़ा के हमारे तो पुलिस वाले मारे हैं, लेकिन वो भी ऐसे साबित हो गया। इनकी अपनी ही वायरलेस एक लीक हो गई जिसके अंदर ये बातचीत कर रहे थे कि जनाब पुल के ऊपर जो था ना, इन्होंने बंदे मार दिए हैं और पुल के, फिर उस बंदे ने पूछा कि पुल के ऊपर मरे हैं या नीचे मरे हैं। उसने कहा जनाब पुल के ऊपर मरे हैं। इससे यह साबित हुआ कि लबैक का जो धरना था वो तो था नीचे, लबैक का धरना था नीचे और वो पुल के ऊपर हुआ तो पुलिस वालों ने खुद ही अपने बंदों को कुचल दिया। वो ऐसे कि जल्दी में हबड़ तबड़ इन्होंने मचाई हुई थी, जल्दी थी, उस वजह से इन्होंने गाड़ी भगाई और वो नीचे गिरे और शहीद हो गए। उसके बाद 2 इनके बंदे शहीद हुए और चलते गए ये जनाब मुरीद के तक पहुंच गए। अभी इनका पड़ाव मुरीद के में है। ठीक है, मुरीद के में पहुंचे हैं। जब हुकूमत ने पहले पंजाब पुलिस को कहा था कि ये निकलने नहीं चाहिए लाहौर से, ये लाहौर से बाहर नहीं निकलने चाहिए, लेकिन लाहौर से वो जैसे ही निकले हैं हुकूमत मुज़ाकरात पे आ गई है। हुकूमत कहती है कि जनाब मुज़ाकरात करते हैं। उन्होंने 10 बंदे शहीद करवाए लबैक ने। उनका अब ये कहना था, एक बात इन्होंने पहले जो है ना, जब ये दाता दरबार के पास पहुंचने वाले थे तब हुकूमत ने इनके साथ मुज़ाकरात करने का वादा किया और इनको लेके, इनकी मजलिस शूरा को लेके कहीं नामालूम जगह पे चले गए और पीछे से फायरिंग शुरू हो गई। शेल बरसाए और फायरिंग की। जब वो शूरा के अरकान वापस आए तो उन्होंने कहा कि अब बातचीत हुकूमत से नहीं होगी, क्योंकि जब बातचीत होती है उसको उसूल होता है कि पीछे से कोई शेलिंग, कोई गोलियां वगैरह नहीं चलेंगी। लेकिन इन्होंने बदअहदी की हुकूमत ने और पीछे से शेल और गोलियां चला दी। अब इन्होंने सख्ती से मना किया था कि जनाब हमने किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं करने, अब हमने इस्लामाबाद जाके धरना देना है। तो जब ये चला, मुरीद के में पहुंचा, पीछे से वजारत दाखिला जो गए हुए थे बाहर वो वापस आए हैं इमरान खान साहब की अपील के ऊपर। उन्होंने इनकी जो छुट्टियां थी वो कैंसिल की हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब वापस आए हैं। उन्होंने इनके साथ मुज़ाकरात करने का कहा है, लेकिन लबैक वालों की मजलिस शूरा ने कहा कि हम बिल्कुल भी मुज़ाकरात आपके साथ किसी सूरत भी नहीं करेंगे। फिर उन्होंने और वफाकी मजहबी अमूर जनाब पीर साहब ने, जो पीर हैं मजहबी अमूर, वफाकी मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी साहब, उन्होंने इनसे कहा कि मुज़ाकरात करें। उन्होंने कहा कि भाई पहले भी मुज़ाकरात में आप ही थे, आपने ही हमारे साथ मुज़ाकरात किए थे, लेकिन आप उसके ऊपर साबित कदम नहीं रहे, इसलिए अब मुज़ाकरात नहीं होंगे।
फिर इन्होंने बरेलवियत की जो जय्यद उलमा है ना, जय्यद यानी कि बड़े उलमा इकराम हैं, उनको बुलाया, जैसे कि जो है ना PST सुन्नी तहरीक के जो बड़े हैं अभी उनको बुलाया गया था, और बहुत से जो गद्दी नशीन हैं बड़े बड़े उनको बुलाया गया और उन्हें कहा गया कि रिक्वेस्ट है कि इनके और हमारे मामलात सेट करवाएं। और उन्होंने फिर मजलिस शूरा को बुलवाया। फिर एक नामालूम जगह पे 8 घंटे की तवील गुफ्तगू हुई, जिसमें अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब भी शरीक थे। फिर इस गुफ्तगू में तय ये पाया कि हमने जनाब ये जो तमाम गुफ्तगू है इसका लबे लुबाब ये है कि एक तो आपने अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी को छोड़ना है, और जितने कारकुनान हैं उनको छोड़ना है, और इनके ऊपर जितने फोर्स शेड्यूल लगे हुए हैं वो ख़त्म करने हैं, और इनकी जो TLP को आपने जो कलअदम किया हुआ है इनकी जमात को, वो कलअदम का बैन इनके ऊपर से ख़त्म किया जाएगा। नाम का बैन था बेशक, लेकिन वो भी ख़त्म किया जाएगा। और उसके बाद जो सफ़ीर का मामला है वो ये जो है ना सबमिट करेंगे पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट आगे उसके ऊपर डिबेट करवाएगा और एक कमेटी तश्कील देगा कि फ़्रांस के सफ़ीर के मामले में क्या करना चाहिए। अभी इनके ये मुतालबात मंजूर हो चुके हैं कल से। आज 11 बजे इन्होंने वजारत दाखिला के उसके अंदर जाना था और इनकी बातचीत होनी थी। जितने भी TLP के कारकुनान अंदर हैं उनको वहाँ पे लेके जाया जाना था और उनकी बातचीत होनी थी और उनको छोड़ दिया जाना था। उन्होंने कहा कि शेख रशीद साहब का कहना था कि 150 से ज़्यादा कारकुन हम पहले छोड़ चुके हैं और 150 तकरीबन बचे हुए हैं जिनके नाम हैं वो हम छोड़ देंगे। और आज जो है वो सुन्नी तहरीक के जो बड़े हैं सरवत एजाज कादरी साहब वो लेके गए हैं लिस्ट, जो बंदे अंदर हैं उनकी लिस्ट लेके गए हैं, उनके नाम फोर्स शेड्यूल से निकाले जाएंगे। अब जो है ना मामलात इतने ख़राब हो चुके हैं कि कोई भी दोनों फ्रीकैन में से एक दूसरे के ऊपर एतबार नहीं कर रहा। दोनों फ्रीकैन का कहना है कि आप दोनों ने बदहदी की है, हुकूमत ने ज़्यादा की है, इसलिए TLP इनके ऊपर एतबार बिल्कुल भी नहीं करना चाह रही। उन्होंने कहा है कि मंगल बुध तक का सुबह तक का टाइम है आपके पास, आपको अल्टीमेट हमने दे दिया है, आपने ऐसे करना है कि हमारे जो मुतालबात हैं वो पूरे करने हैं। उसके बाद अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब हमारे पास आएंगे, यहाँ पे आके हम दुरूद व सलाम पढ़ते हुए अपने अपने घरों को चले जाएंगे। अब जो है मेरा ख्याल है कि अब हुकूमत ने इस्लामाबाद से कंटेनर और सियालकोट से कंटेनर वगैरह उठा लिए हैं, और मेरा ख्याल है कि अभी जो है ना मामला सेटल हो चुके हैं। अभी एक आधे दिन में इंशाल्लाह हाफिज साद हुसैन रिजवी की भी रिहाई हो जाएगी और हुकूमत अभी अपना वादा पूरा करेगी, क्योंकि हुकूमत यहाँ पे फंस चुकी है। तो ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो, और काविश थी हमारी कि इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी आप तक पहुँचाई जाए, क्योंकि दूसरा मीडिया इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं पहुँचा रहा। TLP के हवाले से कुछ लोग परेशान थे कि TLP का क्या बना, तो मैंने कहा वीडियो बना के दोस्तों को बता दें। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमारे लॉजिक TV को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ली दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।